Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and today we are going to study a Tarantula hispanica. So lastly हम लोगों ने देखा ये Tarantula cubans which is like more poisonous than the Tarantula hispanica. बट हम लोग आज हिस्पेनिका के बारे में डिटेल में जानेंगे जस्ट बिकॉज की है ना वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन दीज टू रेमेडीज सो दैट इट इज इजी कि है ना हम लोग जब भी पेशेंट आता है देन वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इन द पेशेंट एंड वी कैन डिफ्रेंशिएट इन दीज बिटवीन टू रेमेडीज और हम लोग अकॉर्डिंगली उसको प्रिस्क्राइब कर पाए. ठीक है, मोस्टली तो ये सब कुछ जो भी रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं ना प्रैक्टिशनर्स उनको ही ज्यादा लगता है. बट स्टिल कभी कभी यू कैन गेट अ केस ऑफ पॉइजनिंग, इन्फ्लेमेशन या फिर यू कैन गेट अ केस ऑफ मोर ऑफ सेप्टिक फीवर या फिर सेप्टिसेमिया. इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस ऑल्सो this remedy acts wonderfully. So as I told you lastly in the last lecture, that is Tarantula cubans is also compared with the this Arsenicum album. So I hope you guys have removed the list of comparison या फिर you have studied it, the compare remedies with the Arsenicum album and the Tarantula group, and you might have watched, I feel you might have watched the previous lecture, like जो भी मैंने lecture लिया था on spider group. So watch that lecture too, so it will be easy for you guys to differentiate in between the two remedies and capture all the characteristic symptoms from the spider group, right? So let's study this Tarantula hispanica. Tarantula hispanica is again a poisonous drug. You can't give अदर देन द सिमिलियम ड्रग्स. मतलब आप है ना ऐसे ही कभी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. लाइक एज लाइक ऑफ लेकासिस, सल्फर, यू आर लाइक कि ओवर काउंटरली हम लोग प्रिस्क्राइब कर लेते. अगर स्किन सिम्टम्स आ गए, दो सल्फर, दो ग्राफाइटिस, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते. जब तक हमें सिमिलियम नहीं मिलता है तब तक हम लोग टैरेंटुला या फिर स्पाइडर ग्रुप दैट इज डीप एक्टिंग रेमेडीज को हम लोग ऐसे ही पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. ठीक है, सो ये बात ध्यान में रख लेना. Then Tarantula hispanica, the common name is that is spider, Spanish spider. हाँ, तो hispanica का Spanish spider है और cubans का Cuban spider है. ठीक है, then the both are belonging to the same family. Let's see the introduction now. Tarantula is a deep and long acting medicine. This spider is very poisonous in nature. Those who are bitten by the spider has imagined themselves to have bitten in the very and developed a tarantulism. What is exactly the tarantulism? I'll tell you. Our teacher has told, like I used to go to a professional teacher of homeopathy. So he used to taught us by giving the explanation of the different cases which he has experienced in his life, right? So मतलब उन्होंने खुद से प्रिस्क्राइब किया होगा एंड किसी और का प्रिस्क्रिप्शन पे भी स्टडी किया होगा. वो सारा वो है ना एक्सपीरियंस किया हुआ हमको बताते थे, वो सिखाते थे, ऐसे रेमेडीज का सिखाते थे, सो दैट वो रेमेडीज ना बहुत इजीली और बहुत जल्दी से है ना हमारे माइंड में बैठ जाता है. सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू टीच हाउ ही यूज्ड टू टीच अस. सो tarantism, what exactly this means? There is dancing mania. So there is not a single word explanation for this condition just because कि है ना tarantism या फिर dancing mania, what exactly it is. आपने कभी है ना if you went to a Hindu temple and in Navratris or in all that conditions where all that functions, cultural functions where so many peoples gather together, they harm themselves, they beat them themselves, they cut themselves, बहुत ज्यादा हार्शली बिहेव करते हैं, फिर डांस करते, उसको बोलते कि है ना मतलब उनमें माता आ गई है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं. सो दैट काइंड ऑफ जो डांस करते हैं ना वो लोग, लाइक दे टॉसेस, दे जंप इन दैट कंडीशन, दैट can be a maniac condition. Like I'm not going against to any religion, but it can be a maniac condition. Like ऐसे ही condition रहता है tarantulism में, tarantula drug में, कि है ना वो जो patient रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा डांस करते हैं on the beat of that particular drum
कि है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते डांस करने से, दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज टैरेंटिज्म. I hope I can explain you well this condition by giving an example. If you haven't seen, you can search it on YouTube and see that dance type. Sphere of action is many symptoms of the body are confined to the right side. Mostly it is right sided drug. All the symptoms you can say which are present can be giving link to a right sided remedy. ठीक है. Its main action is over the nervous system, especially the termini of nerve genitourinary system. अभी टर्मिनाई ऑफ नर्व्स क्या है? ये जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो हम लोगों को, जैसे हम लोग रीड करते हैं ना, यू शुड बी गोइंग ऑन अ इंटरनेट एंड यू शुड बी रिमूविंग कि है ना क्या इसका मीनिंग होता है. मतलब हम लोगों ने रीड भी किया रहता है लेकिन हमको याद नहीं रहता. सो जब भी रेमेडी हम लोग पिक करते हैं ना, तो दैट टाइम यू शुड गो ऑन गूगल या फिर कहीं पे भी आप डिक्शनरी खोल लो और यू ट्राई टू सी, मेडिसिन डिक्शनरी खोल लो कहीं पे भी, and try to see the meaning of the words which are given in the particular remedy. तो है ना वो हमें यूज टू हो जाता है एंड वी आर लाइक कि प्रो हो जाते हैं. जो भी सिम्टम बताते हैं हम लोग रूब्रिक फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है. सो टर्मिनाई ऑफ नर्व्स, व्हाट एग्जैक्टली द टर्मिनाई ऑफ नर्व्स, आई एक्सप्लेन यू कि है ना हम लोगों ने कभी है ना वो नर्व गैप्स के बारे में सुना है, सिनॉप्सिस के बारे में सुना है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर का नर्व फिजियोलॉजी में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ यू नो वहां पे एक्सॉन्स और न्यूरॉन्स का जो मीटिंग रहता है, हाँ, वहां पे सिनाप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं या फिर सिनाप्टिक गैप बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मतलब मैंने भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसके बाद में नहीं पढ़ा है, बट देयर इज दिस टर्म. तो है ना वो दोनों जंक्शंस लाइक यहाँ पे एक्सॉन्स रहते, ठीक है, एक्सॉन्स रहते और ये उनका सोमैटिक बॉडी एंड ये सारा, ठीक है, वो सोमैटिक बॉडी एंड यहाँ पे गैप रहता है एंड देन देयर आर अगेन द एक्सॉन्स. सो दिस एरिया इज लाइक टर्मिनाई ऑफ नर्व्स. ठीक है. सो ये रेमेडी वहां पे एक्ट करती है. सो देखो ये कितनी सेंसिटिव रेमेडी होगी, राइट. देन गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं. रेस्टलेसनेस, दिस इज वेरी 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 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ दिस स्पाइडर ग्रुप रेमेडीज. लाइक कौन सा भी देख लो आप, यहाँ पे भी आपको रेस्टलेसनेस दिखाई देगा. अरे कहाँ गया? ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है, बट देयर इज ऑल्सो रेस्टलेसनेस इन दी टैरेंटुला हिस्पेनिका ऑल्सो. आई कुडंट फाइंड, बट या है उसमें भी. ओके. Now, restlessness cannot keep quiet in any position, must keep in motion, though through walking aggravates all symptoms. मतलब अगर वॉकिंग भी एग्रीवेट, वॉकिंग से उसको एग्रीवेशन रहता है, स्टिल ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ. ही कंटिन्यूसली वॉक, ही इज टॉसिंग कंटिन्यूसली, डांसिंग, जंपिंग, ही इज कंटिन्यूसली इन अ रेस्टलेस पोजिशन. उसके लेग्स के मूवमेंट्स, हाथ के मूवमेंट, मुंह के, पूरे बॉडी के मूवमेंट्स होते ही होते रहेंगे. बहुत वायलेंटली एक्ट करते हैं ये लोग. ठीक है. कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ लेग्स, आर्म्स, ट्रंक विथ इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग. Hyperesthesia, like it is acting on a nerve terminus, there is hyperesthesia should be there. मतलब excessive activity of nerves. ठीक है. Then least excitement irritates, मतलब अगर है ना शांत बैठा है एक आदमी या फिर एक जिसको स्पाइडर ने काटा है एंड ही इज शोइंग द सिम्टम्स, अगर हम लोगों ने थोड़ा भी आवाज कर लिया, देन दैट पर्सन गेट्स एग्रीवेटेड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर सिम्टम. इसीलिए अगर गांव में किसी को भी बिच्छू बोलते हैं हम लोग ना, तो बिच्छू ने अगर काट लिया, दैट टाइम एवरीबडी लाइक जस्ट बीट द ड्रम्स to wake that patient or to keep that patient awake. और है ना वो एक ही कंडीशन नहीं, एक ही टाइप का वो साउंड करते, लाइक ड्रमिंग है ना, सेम मोशन या फिर सेम टाइप का ड्रमिंग करते. ठीक है. ड्यू टू दिस कंडीशन. Then very sensitive to music, very much sensitive to music. It relieves nearly all symptoms, but sometimes it excites violently. Either कंडीशंस, लाइक 50-50 कंडीशंस रहते हैं. एक तो है ना ड्रमिंग की वजह से उसके सिम्टम्स रिलीव भी होते हैं और ड्रमिंग की वजह से उसके सिम्टम्स वॉयलेंट भी होते हैं. व्हेन इट गेट्स वॉयलेंट, एज पर मेरे टीचर ने मुझे बताया
कि है ना, मतलब जब उसका पॉइजन उसके अंदर नर्व्स तक बहुत ज्यादा फैल जाता है, दैट टाइम द सेंसिटिविटी गोज इट टू अ हायर रेंज। तब अगर ड्रमिंग करते हो आप, तो दैट टाइम वो पर्सन मतलब सो तो नहीं पाता है, बट वो पर्सन ना उतना रेस्टलेस होता है जितना हम लोग बीट करेंगे। वो अगर हम लोग वैसे टाइप के पर्सन में शांत बैठेंगे, दैट टाइम इट काम्स डाउन हिज कंडीशन। ठीक है। क्रेव्स रॉ फूड, एवर्जन टू फूड एंड मीट, thirst for cold water, this is again a characteristic symptom, then extreme sexual desire leading to mania, then वो है ना बहुत shameless kind of persons हो जाते हैं वो mania condition में। then annual periodicity of the symptom is marked, then uh, at every menstrual period tongue, mouth and throat gets इनटॉलरेबली ड्राई, स्पेशली वाइल स्लीपिंग। बहुत ज्यादा मतलब नाइट एग्रीवेशन तो रहता ही है कॉमनली प्रेजेंट इन द टैरेंटुला ग्रुप, मतलब स्पाइडर ग्रुप। एंड देयर इज ड्राइनेस अगेन, दिस इज ऑल्सो ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन गेट्स ड्राई, दिस इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। ठीक है। कॉफ ओनली रिलीव्स बाय स्मोकिंग। ना माइंड सिम्टम्स, माइंड का मैं पूरा रीड नहीं करते बैठूंगी, बट आई विल टेल यू अ स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग विच माय टीचर हैज एक्सप्लेन मी। देयर वाज मतलब एक गांव था, वहां पे एक पूरा हमारा मेंटल कंडीशन इस स्टोरी में आ जाएगा। ठीक है। वहां पे एक गांव था, उस एक बंदे को है ना, जब वो घास काट रहा था ना, दैट टाइम ही गॉट स्टंक, या फिर दैट टाइम ही गॉट बिटन बाय स्कॉर्पियन बाइट। ठीक है। एक स्कॉर्पियो से, नॉट स्कॉर्पियो, स्पाइडर का ही वो टाइप था, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना क्या रहता है वो, बहुत जंगली टाइप ऑफ स्पाइडर। ठीक है। जो इजीली हम लोग खेतों में वगैरह पाया जाता है, टाइप ऑफ स्पाइडर फ्रॉम अ ट्री, वो गिर गया एंड उसका बाइट हो गया। ठीक है। सो देयर वाज वेरी मच रश ऑफ ब्लड उसके अंदर था, वो बहुत ज्यादा रेड हो गया, उसके आंख रेड हो गए, उसके पाम्स रेड हो गए, सोल्स रेड हो गए, एंड ही वाज फ्लशिंग, लाइक उसने वो सारे सिम्टम्स थ्रो किए। देन आफ्टर जैसे जैसे नाइट हुआ ना, वैसे वैसे वो है ना, उनको बहुत ज्यादा काम करने को ऐसे हो रहा था कि मैं काम करूं काम करूं काम करूं। ही वॉज वर्किंग टिल 9 o'clock इन द नाइट, एंड उनकी बीवी आती है एंड शी टुक हिम होम और बोलती है कि बस हो गया, अभी बहुत हो गया, यू आर लाइक टायर्ड, अभी सोते हम लोग। सो उसने भी कुछ नोटिस किया डिफरेंट, उसको लगा कि दिन भर काम किया इसलिए वो रेड हो गया है, इसलिए वो ऐसे दिख रहे, वो काले भी पड़ गए थे। इट वॉज नॉट अ ब्लैकिशनेस, बट इट वॉज अ ब्लूइशनेस विच शी कुडेंट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली। ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ कंडीशन हैपेंड विद दैट गाय, एंड एट नाइट ही कुडेंट स्लीप, ही वॉज लाइक कि बहुत दर्द हो रहा है हाथ पैर में। सो हिज वाइफ टोल्ड कि ना आपने बहुत काम किया, दैट्स वाई आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। बट अगेन ही टोल्ड कि नहीं, मुझे बहुत कैसे तभी हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस ऐसे फील हो रहा है। एंड वो उठ के बैठ रहे थे, बार बार वॉशरूम होके आ रहे थे, बार बार वो है ना मतलब बोल रहे थे कि मुझे ना यूरिन पास करते समय भी मतलब जलन हो रहा है। देन बहुत ऐसे हेडेक भी हो रहा है बोल रहे थे, आग भी उनकी लाल हो गई थी, खाना भी नहीं खाया उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्जी थोड़ा सा एक दो बॉल्स लिया एंड जस्ट खत्म। ठीक है। सो ही कुडंट कीप हिमसेल्फ इन अ प्रॉपर स्टेज, तो है ना वो ऐसे पागल की तरह बहुत ज्यादा बड़बड़ करने लगे। ही स्टार्टेड वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, एंड उससे उनको बहुत तकलीफ भी हो रही थी। स्टिल ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो है ना उस औरत ने गांव में किसी एक बड़े आदमी को बताया, एंड ही केम फॉर देयर रेस्क्यू या फिर हेल्प। तो वो आने के बाद उन्होंने ना उसका पूरा उसको पूछा क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, उसको चेक किया, एंड देयर वाज अ स्पाइडर बाइट मार्क्स। दैट मैन रिकॉग्नाइज्ड इट, एंड ही सेड कि ये तो है ना किसी कीड़े ने काटा, एंड दैट उसकी वजह से ये काले नहीं पड़े, ये इनका स्किन थोड़ा सा ब्लूइश हो गया, बट इट इज अगेन अ रूरल प्लेस, हम लोग कहीं पे लेके नहीं जा सकते थे उनको। तो उनकी बीवी ने उनको पूछा कि क्या हेल्प कर सकते हैं, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या करे। तो है ना सुबह तक उनको ऐसे सोने नहीं देना है, उनको ऐसे ही रखना है। सो एवरीबडी कलेक्टेड, मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, एंड दे स्टार्टेड ड्रमिंग, दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, दे ऑल वर हेल्पिंग टू कीप दिस मैन अवेक, मतलब उसको सिम्टम्स से रिलीव करने के लिए वो सब लोग उसको हेल्प कर रहे थे। एंड दिस कंडीशन, देयर वाज अ रेस्टलेसनेस, देयर वाज वेरी
और वो कपड़े उतार रहा था, उसको गर्म हो रहा था, ये हो रहा था, पता नहीं, लेकिन वो एक फेज में चला गया. कभी कभी तो वो है ना अपने बच्चों को, बीवी को है ना पहचानता भी नहीं था. ही वेंट इनटू दैट मैनियक कंडीशन. वो है ना जंप करने लगा. ही यूज्ड टू बिहेव वेरी डिफरेंटली एज इफ ही इज अ मैनियक पर्सन. फिर उसके बाद ही स्टार्टेड jumping, he started beating himself, he started patting his head on some wall, some pole. ठीक है, पिलर पे वो खुद को पीटने लगा. देन ही वॉज वेरी सिंगिंग, ही डांसिंग, ही स्टार्टेड उसके बाल खींचने लगा. ही गोज कंप्लीटली इनटू दैट मैनियक कंडीशन. और वो पानी भी नहीं मांगता था, वो है ना वेरी वेरी मच. और वो है ना मतलब उसको प्यास भी लग रही थी और वो पानी भी पी नहीं पा रहा था. दिस काइंड ऑफ कंडीशन वॉज हैपनिंग. देन नोबडी वॉज गिविंग हिम वाटर अगेन. मतलब उनको डर लगा कि अगर कुछ हो गया तो देयर कैन बी अ पॉइजनिंग, ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ कंडीशन रहता है. तो दिस इज द मेंटल स्टेट ऑफ दिस पर्सन. देन अगेन इसमें नर्वस सिस्टम भी कवर हो गया. दैट इज एक्स्ट्रा इरिटेबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्पेशली द टर्मिनी ऑफ द नर्व्स इन द रेड स्टैंड ऑफ टैरेंटुला. ठीक है, वी नोटिस द कोरियक अफेक्शंस ऑफ द होल बॉडी, राइट आर्म एंड द लेग्स, कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स, आर्म, ट्रंक, वो जो भी मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग इज दैट. देन देयर इज ट्विचिंग. हाँ, तो है ना देयर इज ट्विचिंग. ट्विचिंग मतलब क्या होता है? ट्विचिंग एंड जर्किंग. जब भी हम लोग अभी सोते हैं ना तो दैट टाइम हमारा हाथ है से कुछ तो होने की वजह से उड़ता है. हाँ, हमें भी पता चलता है, हमारी नींद खुल जाती है. दैट इज कॉल्ड एज ट्विचिंग, सॉरी जर्किंग. ठीक है, एंड ट्विचिंग इज कभी कभी ना हमारी आंख फड़फड़ करती है. कभी कभी हमारा है ना उंगली के उधर ऊपर की साइड में, नर्व्स के साइड में ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे उड़ता है, जैसे कि ऐसे पल्स फील हो रही है, ऐसे लगता है. दैट इज ट्विचिंग. ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ द मसल्स. Hyperesthesia aggravates by touching and affected parts, by relief by rubbing an affected part. Restlessness must keep in a motion and aggravates. Restlessness again aggravates the symptoms, but वो हेल्प नहीं होता है. मतलब उसको रेस्टलेसनेस होता ही होता है और उसको एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स भी वही कंडीशन से रहता है. ठीक है, एग्रीवेशन बाय मोशन, कॉन्टैक्ट, touch of affected parts, noise, change of weather. Then there is amelioration in open air music, rubbing affected parts. That's it. ठीक है, and relation antidotes by lachesis. When arsenic album is well selected but fails, then think of tarantula in dry itching eczema when arsenicum and sulfur fails. Okay, again इसका स्किन कंडीशन भी मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, मैं खुद रेड करूंगी and I'll teach you that. Similarly, Apis, Cortalis, Lachesis, Platina, Mygale, okay, Naja, Theridion, all these remedies are similar to this group. So हम लोग इसके बारे में पढ़े. ठीक है, दोनों रेमेडीज हो गई. आई होप you understand Tarantula hispanica and you understand the Tarantula cubans. I know this lecture has got extended like 18-19 minutes ka, but it is worth listening, it is worth studying this remedy. And if you want to know this remedy ka details, then go and study my group study of spiders. So you will get a basic idea of that, and then these two remedies will be very easy to understand and very easy to know. I hope you understand these two remedies. If do, then do consider subscribing, and if you have any kind of doubt, then you can ask me in the comment section, or you can mail me, or you can Instagram me, like DM me on Instagram. So yeah, this was it. This was today's video. I hope it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing. Thank you.